سر صاحب خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی ہسپتال میں رہنا چاہیے یا پھر واپس جائیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، عمران پہ تو نہیں ڈیپینڈ کر رہا کہ انہیں رہنا چاہیے واپس جانا چاہیے. بھائی گورنمنٹ آتی ہے چلی آپ جاتی ہے. پھر کہہ رہے وہی بات کرے ہو کہ حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ سر یہ پولیس ہے، اس فرض کا اس کریں میں ہے ہی نہیں. سر پولیس ہے، یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، ریاست کی ہے. عدلیہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، ریاست کی ہے. قانون کس کی ہے؟ ریاست کی ہے، گورنمنٹ کی نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ سر حکومت جو ہوتی ہے نا، ایک آپ یہ سمجھے کہ مستری ہوتا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے. یار ہم 24 گھنٹے سے جاوید چودھری صاحب 24 گھنٹے ہم حکومت کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، ریاست کو نہیں رگڑ رہے ہوتے. ریاست کو کون رگڑتا ہے؟ ریاست کو نہیں رگڑنا چاہیے. ریاست کے اگر آپ خلاف ہو گئے تو پھر آپ کیا اس کوئی ملک موقع نہیں پہ ہے. حکومت بیچاری، حکومت کو آپ نے ایسی اس طرح پروجیکشن کیا جیسے حکومت بیچاری اگر کسی پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے اس ایک وقت میں ہم سب کو، تو وہ حکومت ہے جس پہ ترس کھانا چاہیے. حکومت قابل ترس ہوتی ہے پاکستان میں. اب آپ بتائیں سر جو مسافر ہوتے ہیں نا جی، ایک ہوٹل ہے اس کے اندر آ کے ایک بندہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے، وہ ہوٹل کا مالک مسافر بنا دیا. یعنی حکومت کو آپ مسافر، ساری گورنمنٹس مسافر ہوتی ہیں. ایک ٹینیور تو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا، نہیں آنا جانا ہوتا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے چلا جاتا ہے. ٹینیور تو ہوتا ہے نا، ریاست تو مشکل نہیں ٹینیور تو ہوتا ہے نا حکومت کا. تو ٹینیور تو پورا سب 5 سال پورے کرے گی گورنمنٹ. گورنمنٹ پوری، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ 5 سال واقعی پورے کرے. اچھا ایک بات ہے، گورنمنٹ پورے کرے. ایک ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی ہوتا نہیں دوست ہیں کہ نہیں ہیں، میڈیا کے ہمارے پرسن ہیں، یہ چوہی سہیل بڑائچ. چوہی سہیل بڑائچ ایک میری ہی گیٹ ٹوگیدر میں جب میں نے نوکری جوائن کی نا سما کی، تو وہاں انہوں نے بات کی، باقی اینکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بات کی کہ دوسری شادی. ہم نے کہا چوہی صاحب دوسری شادی کون سی؟ کہتے جی جو کرنے والے ہیں نا وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں پھر میری طرح کا بندہ بولا. میں نے کہا جی خامند اگر بیوی سے چھٹکارا پانا چاہے تو اس کی 2 3 4 صورتیں ہوتی ہیں. یہ اسٹیٹ ہے، اس کے اندر خامند اور بیوی کہاں سے آگے ویسے؟ اچھا ہم لوگ اسٹیٹ میں خامند اور بیوی کو نہیں لا سکتے. گورنمنٹ جو ہے وہ آپ ہر چیز میں پتہ نہیں کیا کچھ لے آتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو روکا؟ سر یہ گورنمنٹ بیوی مجھے تو لانے دینا، چلے میں اسٹیٹ کے معاملات میں خامند اور بیوی کو لا رہا ہوں. اچھا ویسے عمران خان صاحب پہ بات کرتے ہیں نا سر، عمران خان صاحب پہ بات کرتے ہیں، بڑا ایشو تو عمران خان ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہتے ہیں ہسپتال کے اندر، جو سارے کورٹ کا آرڈر ہے کہ 16 سپٹمبر تک انہوں نے ہسپتال میں رہنا ہے، تو یہ صرف عمران خان صاحب کا امتحان نہیں ہوگا، گورنمنٹ کا بھی ہوگا. یہ دونوں پھنسے ہوں گے. اب اگر گورنمنٹ کو آپ نے کہہ دیا ہے، گورنمنٹ بیچاری ایک کمزور پوزیشن میں چلی گئی. عمران خان ریلیٹیولی ایک مضبوط پوزیشن میں چلا گیا. امتحان عمران خان کا ہے، کیونکہ عمران خان کی پہچان جو ہے نا سولو فلائٹ تھی. عمران خان کی پہچان تھی اس نے ہر جگہ ٹکر نہیں. اب اگر وہ ٹکر نہیں لے گا تو عمران خان کی پاپولرٹی ٹکر لے گا نا تو سر جیل واپس جائے گا اور اڈیالہ جیل واپس جائے گا. اور کیونکہ جو سیٹلمنٹ ہے نا، سیٹلمنٹ کے اندر یہی ہے، سیٹلمنٹ یہی ہے کہ اس نے اچھا بچہ بن کے دکھانا ہے. اب اگر اچھا بچہ بنے گا تو پھر یہاں سے بنی گالہ جانے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور وہاں پہ وہ ہاؤس ریسٹ رہیں گے. پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد بشا بی بی بھی ان کو جوائن کر لیں وہاں پہ، اور وہاں پہ سوئمنگ پول ہے، وہاں پہ واکنگ ٹریک ہے، وہاں پہ اپنا خانسامہ ہے، وہاں پہ اپنا ڈاکٹر ہے، اپنے کپڑے ہیں. بنی گالہ کے اندر اپنا گھر ہے، اپنی فضا ہے، پھر وہ جا کے وہ آرام سے ایک زندگی گزار سکتا ہے. مجھے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بہیو ٹھیک نہیں کرے گا اور اس طرح جس طرح مجھے آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرنا چاہیے سامنے، لیکن پارٹی اگر ناراض ہو جاتی ہے اور میں ایگری کیوں کر رہا ہوں بہتر طریقے آپ کے ساتھ، میں کہاں کہہ رہا ہوں آپ ایگری کریں. میں ایگری بلا کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو آپ نے بات کی نا، اس وقت عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین قیدی بن چکا ہوا ہے. 1 ارب روپے قومی خزانے سے اس پہ خرچ ہو چکا ہے. اجمل قصاب انڈیا میں تھا سب سے مہنگا ترین. بھائی 1 ارب اب میری بات تو 1 ارب کا گوشت کھا گئے. میری بات تو سن لینا. جب اس طرح کا قیدی ہوتا ہے، اجمل قصاب کیا بندے کھاتا تھا؟ اجمل قصاب انڈیا کی ہسٹری کا سب سے مہنگا ترین قیدی. کس طرح کیسز آپ پہ ڈالے جاتے ہیں؟ سر اجمل قصاب اور عمران خان میں بڑا فرق ہے سر. اچھا وہ بھی مہنگا تھا، یہ بھی مہنگا تھا. دیکھیں نا آپ ٹماٹر کو، یار میں نے اس کو کیا، اجمل قصاب کو کیا، میری وجہ سے انڈیا کا مہنگا ترین قیدی. عمران خان پولیٹیشین ہے،
प्राइम मिनिस्टर है रहा है पाकिस्तान का, पॉपुलर लीडर। मैं महंगा तरीन कह रहा हूँ यार, महंगा तरीन बड़े और ममालिक हैं मियां जिनके महंगे तरीन हैं। नवाज शरीफ साहब बहुत सस्ते थे और आसिफ अली जरदारी साहब सस्ते पड़े इस मुल्क नहीं, इसके मुकाबले में सस्ते थे, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन सबसे में। आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल के अंदर रहे हैं, रोज एक देख, चाहे वो 20 साल रहे हों, 1 अरब का नहीं पड़ा कौमी खजाने को। अब उस वजह से मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पार्टी से लेना चाहिए, मैं उस वजह से आपसे एग्री करता हूं। अच्छा सर, अब अगर इमरान खान साहब अगर फर्ज करें या उनकी पार्टी जो कमिटमेंट्स हैं वो उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, जो राइटर्स की आज राइटर ने स्टोरी दी है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया हुआ है कि अब वो आर्मी चीफ से या फौज से या स्टेट से नहीं लड़ेंगे, और राइटर की स्टोरी है सर, और जुल्फी बुखारी साहब ने इंकशाफ किया ये। तो बहरहाल एनी हो, अब अगर वो कमिटमेंट से फिरते हैं तो फिर उसके बाद जेल वापस 100% कमिटमेंट, पक्की बात। आपका ख्याल है बगैर कमिटमेंट का सब कुछ हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट ना होती तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर अपोज करना था, वहां पे मुकम्मल खामोशी रही और कोर्ट ने कहा जी इनको जाने लगे, तो बोलने का जाने दे। वैसे तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 3-1 साल तक ना जाके चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, और वैसे सारी पार्टी आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, उनको एक बुखार था कि हम बहुत पॉपुलर हैं, और उसके बाद 3-4 मरतबा फिर वो बुखार उतरा, उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को 2-3 मरतबा लगे, और 2-3 मरतबा फिर पॉपुलरिटी का 2/3 मेजॉरिटी का बुखार हुआ, उसके बाद देखें आराम से अंदाजा हो गया, आज पॉपुलर अंदाजा हो गया कि स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मुल्क चलाना चाहिए। आज पॉपुलर कौन है? इमरान खान साहब जानते हैं। अब इमरान खान साहब का फेज है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी 3 साल में अंडरस्टैंड कर गए, और जेल के बारे में कहते हैं कि 3 साल तक तो आप आराम से गुजार लेते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, इबादत कर लेते हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं आप वहाँ पे बैठ के, उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि सुख है, सांस है, ठीक है, बाहर नहीं हो सकता। 3 साल बाद जाके अचानक इंसान को डिप्रेशन होता है, फिर उसे याद आता है कि बाहर कॉफी शॉप्स थी, वहां पे जाते होते थे, प्ले ग्राउंड्स होते थे, वहां पे हम रेस लगाते होते थे, दोस्त होते थे, मुल्क से बाहर चले जाते थे, इमरान खान और महफिलें होती थी शाम के वक्त, वो सारे के सारे फिर मिस करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो एक डिप्रेशन आता है ना 3 साल के बाद, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें, जिस बंदे ने भी कंप्रोमाइज किया ना 3 साल के बाद किया, वो अल्टीमेटली 3 साल तक डटा रहा हो। 3 साल तक इंसान के अंदर जज्बा होता है, वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है, गुजारा कर लेंगे, लेकिन 3 साल बाद जाकर ना अचानक फ्लैट होता है। तो इमरान खान साहब की जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है ना, वो 3 साल के बाद स्टार्ट हुआ, और ज्यादा खौफनाक स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये सारा जो फेज है ना, ये आप बताएं कि 3 साल में इनका डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो नेल्सन मंडेला 27 साल कैसे? नेल्सन मंडेला वो अबव था, वो लीडर ऑफ द लीडर्स, लीडर ऑफ द लीडर्स। ये बात सही है, मुझे एग्री नहीं करना, उनके साथ कंपेयर ना करें, उनके साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये जो सारा मामला था ना, ये बेसिकली तो कहा जाता है, अब ये ना सोर्सेज, जो मुख्तलिफ सोर्सेज है ना पार्टी के, और जो इमरान खान साहब के जराए नहीं, पार्टी के जराए और उनके जो दोस्तों के जराए, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। अच्छा, उनका ये कहना है कि ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था बुशरा बीबी की भाभी से, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई बुशरा बीबी के साथ, बुशरा बीबी ने उनको बताया कि इमरान खान बिल्कुल लेट गया हुआ है कंप्लीटली, और उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, और जाके बाहर बताओ कि जो भी करना है फौरी तौर पे करो, क्योंकि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात है। ये कोई 15-20 दिन पहले की बात है, ये अभी की रिसेंट है। और उसके बाद फिर पार्टी को महसूस हुआ कि या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि लीडरलेस हो जाएं, और या फिर ये है कि हम अपने लीडर को बचाएं, हमें सियासत कुर्बान करनी पड़ेगी, और इसके मामले में कोई कंप्रोमाइज हमें करना पड़ेगा, फिर जाके ये मामला सेटल होगा। अगर उन्होंने सियासत कुर्बान कर दी तो इमरान खान और पीटीआई और 90-93 सीटें सब गई। सर 10 देखें ना, मियां नवाज शरीफ को 3 मरतबा कहा गया कि खत्म हो गया, फिर आ गए। पीपल्स पार्टी को 6 मरतबा कहा गया खत्म हो गई, फिर आ गई। और पीटीआई भी ये कहा जाएगा कि देखें जी इनकी मॉरल ग्राउंड्स नीचे चलेगी हैं, ये तबाह होगी, बर्बाद होगी, लेकिन फिर आ जाएगी। सियासत के अंदर तो यही भी आप सियासत के अंदर होता है। यहाँ पे मैं भी सर, अगर इंसान जिंदा है ना तो कुछ भी हो सकता, और अगर इंसान दुनिया से चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं ना, जिंदा अगर नहीं है तो हम बात भी नहीं करेंगे। देखें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब सर, पाकिस्तान पीपल्स आज भी जिंदा है, कम से कम सिंध की हद तक जिंदा है सर, तस्वीर जिंदा है ना उनकी। अब अगर वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी है ना सर, 6 मुल्कों की भी पार्टी हो जाए ना, 6 मुल्कों के अंदर भी उनका इक़्तिदार हो जाए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, है नहीं दुनिया में।
से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, ये बिलावल बेइंतहा भुट्टो नहीं उनके बन सकता। एहतराम है। आप उसके नवासे की बात करें, और बिलावल भुट्टो नहीं बन सकता। अगर इमरान खान जिंदा है तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसकी पार्टी दोबारा इख्तिदार में आ सकती है, लेकिन अगर वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब मेरा ख्याल है आप समझदार हो गए, और ये जो समझदारी है ना ये बेहतर है उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। जावेद चौधरी साहब जो कंप्रोमाइज करते हैं, आप कहते हैं समझदार हो गया। सर ये को मुल्क तोड़ना है आपने, को मुल्क नया बनाना है। सर लीडर चाहिए होते हैं मुल्क बनाने के लिए, मैनेजर चाहिए होते हैं मुल्क चलाने के लिए। आपको मतलब इमरान खान पहले मुल्क तोड़ रहा था, अब बनाएगा। आपको एक गुड मैनेजर होना चाहिए स्टेट को चलाने के लिए, और गुड मैनेजर कौन होता है? बहुत अच्छी टीम हायर करता है। लीडर्स जो होते हैं ना उनको टीमों की जरूरत ही नहीं होती, वो अकेले ही काफी होता है। अब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना थे सर अकेले ही काफी थे, उनको टीम की जरूरत ही नहीं थी। महात्मा गांधी अकेले ही काफी था, लीडर की जरूरत ही नहीं थी। अब इसके साथ साथ मैनेजर है शहबाज शरीफ, वो कमजोर है। गवर्नमेंट साथ देखें, स्टेट के सामने गवर्नमेंट कुछ नहीं होते। अच्छा, स्टेट के साथ गवर्नमेंट का मैच भी स्टेट के साथ है, अपोजिशन का मैच भी स्टेट के साथ है। सर देखें, एक गाड़ी होती है, एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर गाड़ी का मालिक भी हो। तो आपका एक फंक्शन है, और अगर आपने एक अच्छी गाड़ी चलाई लोग कहेंगे वेल डन यार, कमाल कर दिया आपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस गाड़ी के मालिक बन गए। आपकी ये बातें सुन के ना मेरा तो कभी ज़हन में आया ही नहीं था सियासत के बारे में। अगर आप थोड़ी देर के लिए आता कि अगला आके मुझे कहे ना कि हुकूमत ले लो, तो मैं कहूँगा जावेद चौधरी साहब की बातें सुनने के बाद मैं हुकूमत का एक हिस्सा भी नहीं लूँगा। आपने हुकूमत को जिस तरह प्रोजेक्ट किया ना, वो एक बंदे ने कहा ना, उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारी 4000 बकरियां ले लूँ तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? कहता कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा अगर मैं तुम्हारी 2 मरबे ज़मीन ले लूँ तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? उसने कहा कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा अगर ये मैं तुम्हारी हाकी ले लूँ तो फिर? उसने कहा खबरदार हाकी को हाथ लगाया मैं टांगे तोड़ दूँगा। उसने कहा ये क्या मतलब? उसने कहा मेरी मलकियत सिर्फ हाकी है, बाकी है ही नहीं मेरे पास। तो सेम इसी तरह हाँ सियासत में आप गवर्नमेंट जा ही नहीं सकते, ना गवर्नमेंट में आ सकते हैं, ना आए हुए लोग सियासत में आ सकते हैं। आप कहते हैं मुझे अगर नवाज शरीफ, मुझे अब जरदारी, इमरान खान, इसको आपने हाकी वाले के साथ मिला दिया। आप वैसे लोग था। आप वैसे आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपको प्लेट पर रख के कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और आप कहें मैं नहीं बनता। चलो नहीं, ख्वाब देखा नहीं जा सकता। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, ये आपका बुनियादी हक है। रात को सोते हुए आप कोई भी ख्वाब देख सकते हैं। अगर मैं ख्वाब में देखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे मशवरा कर रहा है, आप रोक सकते हैं उस ख्वाब को? नहीं रोक सकते। मुझे जागते हुए ख्वाब नहीं देखना मुझे मेरा ख्याल है रोज आपके ख्वाब में डोनाल्ड ट्रंप आते होंगे, साथ प्यूटन भी आते, एक दफा भी नहीं आया। साथ प्रेसिडेंट नहीं एक दफा भी नहीं आया। शी भी आता नहीं पूछता हूँ, प्रैक्टिकली एक दफा भी नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आ गया तो आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा बहरहाल हमने जागते हुए नहीं ख्वाब देखना। हमने एक ब्रेक लेनी है। एन मुमकिन है कि अगर डॉक्टर ये कहता है कि नहीं इनको अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद हो सकता है इमरान खान साहब को वापस भेज दिया जाए। और अगर डॉक्टर्स ने ये मुनासिब समझा कि नहीं इनकी टेक केयर करनी चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब को यहाँ रखा जाएगा। लेकिन अगला सवाल ये है कि कितनी देर तक इमरान खान साहब जो है यहाँ रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि 16 सितंबर तक, लेकिन गवर्नमेंट इनको 16 सितंबर तक यहाँ नहीं रखना चाहती, और वो ऑप्शन देने लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अगर ज़रूरी है तो इनको पिम्स में शिफ्ट कर देते हैं। इमरान खान साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद।